any country's prosperity is not only what we see above the earth. You see big buildings, you see factories, you see other developmental projects, and you feel that, yes, the country has moved forward, has progressed. But the real wealth of a country is what lies beneath Mother Earth. And that is why we have to ensure that the real prosperity which lies below Mother Earth is harnessed to its fullest potential, and that will truly make India a great nation. Our friend Milind was just speaking about some rare earths and critical minerals. I'd just like to mention something which is very recent. You know, the Ukraine-Russia war which is going on. And when President Zelensky went to the White House for the first time, the biggest ask from America to President Zelensky was, I want the rare earths, the critical minerals which are in Ukraine, they should be given to the United States of America. Right now we have a trade war going on. There is a tariff issue going on between India and the United States and with many other countries of the world, with the US. Why is China left out from that extra special treatment which is being now meted out to India? The reason is they have got rare earths and critical minerals, which was just pointed out by my friend, that they are in a position where they can command, because they can spoil the entire value chain which is built up across the United States or in any other country just by not supplying those critical elements. Today, all electronics, all, I would say, hardware, software, all that is being created, there is a very big element of all these rare earths and critical minerals. Today, if you really look at even space exploration, today we have the nuclear. Today, nuclear, we are not talking so much about nuclear. We talk about solar energy, wind energy, water, hydro, all that is fine, that has to be done. But nuclear energy is also a big source of energy in the world. France, a developed country, gets almost 90% of its entire energy coming from nuclear sources. India also has a very ambitious nuclear energy production program. All that will require these kind of critical minerals. For you'll need uranium, you'll need thorium, you'll need many other critical minerals which all lie below the Mother Earth. And that is why what the minister has also talked of a trust in this bill to create a kind of a fund which will help in exploration, which will help in mapping the critical minerals which are available within India, is a very welcome step. Today, sir, you know, there are new technologies. Aerial mapping, there are planes with all the technological equipment to sensors and everything, which can map critical minerals, water, and any other kind of below the surface substance for miles deep into the Mother Earth. So these are all new changing, evolving technologies. हम लोग पुराने समय पर केवल हम माइनिंग की बात करते थे, तो कोयले की खदान की बात करते थे, या हमारे लोहे की खदान की, आयरन ओर की बात करते थे। ऐसी कुछ आम बातें हम लोग ज़्यादा करते थे। लेकिन आज विश्व बदल गया है, दूसरी दिशा में जा रहा है, और उसके आधार पर आधुनिक युग में हम किस तरह से हमारे भारत की जो हमारे पास संसाधन खुद उपलब्ध है, इसका हम इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक आखिरी में कहता हूँ, कोयला जैसी एक चीज़ है। कोयला हमारे पास 100 साल से ज़्यादा हमारी ज़रूरत का आज भी उपलब्ध है, मगर हमें सबको मालूम है कि 20-25 साल के बाद कोयले की जो ज़रूरत आज खास करके बिजली उत्पादन या अन्य फैक्ट्रियों में हमारी जो आज है, वो कम होते जाने वाली है, क्योंकि पर्यावरण और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए हम इसकी इस्तेमाल कम करने वाले हैं। लेकिन भविष्य में इसका कोल बेस्ड मीथेन होगा, कोई और उसका एप्लीकेशन आएगा। इसके लिए हमारी पूरी तरह से अच्छी तैयारी होनी चाहिए। हमारा देश हमारे माइनिंग के हिसाब से हमारे खुद की जो संसाधन है, इसको अच्छे से अच्छे तरह से हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। भारत सरकार की एक कंपनी है रेयर अर्थ्स लिमिटेड, उसका नाम ही रेयर अर्थ्स लिमिटेड एज अ भारतीय सरकार की कंपनी है। उसका मतलब यह है कि हम भी इसके महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन उस महत्व को हम लोगों ने पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है।
और इसलिए प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में, खास करके ये माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ के बारे में उन्होंने अपने कई वक्तव्यों में इसके बारे में बात कही है। आज हम लोग भी जो थोड़े बहुत परेशानी में आते हैं, क्योंकि हमें भी हमारी फैक्ट्रीज, हमारे बहुत सारी वैल्यू सप्लाई चेन्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसका वजह है कि हमारे पास रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स की कमियां हैं, और इस वजह से कहीं कहीं हमको दुनिया में लोगों के साथ समझौते हमारी इच्छा के विपरीत भी करने पड़ते हैं। वो समय को हमको आगे मतलब हरण करके आगे जाना है, और भारत को सशक्त बनाने के लिए 2047 का विकसित भारत का जो मिशन है, उसमें खनिज आपदा ये हमारे लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका खेलने वाली है। इसका महत्व आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भारत को 100-200 साल के बाद का भारत जब हम देखेंगे, तो उसमें आज की जो ये नीति जो बनने जा रही है, ये कानून जो बनने जा रहा है, ये इसकी बहुत बहुत बड़ी महत्वता रहने वाली है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, और आखिरी में अंत में एक बात कहूँगा कि हमारे बहुत सारे जो संसाधन है, जब हम उसके माइनिंग के लिए जाते हैं तो हमारी पर्यावरण की जो नीति है, एनजीटी और वगैरह जो हमारे प्रोसेसेस हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन जो उसके जो प्रोसेस है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सरलता लाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत हम लोगों को इस मामले में अगर हम कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आज होने वाली चीजें 10 साल बाद होती है, 20 साल बाद होती हैं। कोई लोग उसमें बीच में पड़ जाते हैं, एनजीओस पड़ जाते हैं, कई वेस्टेड इंटरेस्ट पड़ जाते हैं, एक उद्योजक का दूसरा स्पर्धक होता है, वो रोकता है। तो इसको भी कहीं ना कहीं सरलीकरण करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी लॉस टुडे, आज उसका जो हमको फायदा मिल सकता है, वो शायद 20 साल बाद हमको मिले तो क्या फायदा है। देर आए दुरुस्त आए, ये मामला इसके लिए लागू नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इसमें भी मंत्रालय ज्यादा विशेष ध्यान दे, और पर्यावरण की जो क्लियरेंसेस है, ये हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। मैं पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करता हूं, सराहता हूं, और मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद पटेल साहब। श्रीमती सीमा द्विवेदी। कितना टाइम है, देखो कितना टाइम है, बोलो ना। अच्छा, माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने शपथ लेने के बाद इतना बड़ा निर्णय लिया, जिस निर्णय से देश का बहुत हित हुआ और हमारी औद्योगिक नीति को बहुत बढ़ावा मिला। महोदय, मैं आज जो खान और खनन विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है, उसके लिए मैं सरकार को अभिनंदन करती हूं, और माननीय अपने कर्मठी मंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। महोदय, देश ने यूपीए की सरकार को देखा है कि उनके ज़माने में किस तरह से देश में खनन क्षेत्र में कितना बड़ा बड़ा घोटाला किया गया, और महोदय उस घोटाले में कानून में ऑक्शन के खदानों का आवंटन करने की व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए अपारदर्शी और पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ, जिसका खामियाजा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेकों वर्षों तक झेलना पड़ा। महोदय, कांग्रेस के जमाने में, महोदय आप जानकार हैं, आप स्वयं में बुद्धिमान हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। कांग्रेस के जमाने में जो कोयले का घोटाला हुआ था, मैं समझती हूँ इतना बड़ा घोटाला इस देश के राजनीति में कभी हुआ नहीं, और जिसका प्रभाव जहाँ एक तरफ देश में देखने को मिला, वहीं पूरी देश में कोयला घोटाला होने के बाद पूरी देश में अंधेरे का भी सामना पड़ा